اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 16۔ مور کی صفت اور مزاج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسے مارنے کی وجہ۔ مور میں حب جاہ کا جذبہ مشہور ہے۔ حب جاہ میں انسان اکثر نفاق سے کام لیتا ہے، وہ انسانوں کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ حب جاہ میں مبتلا انسان کی دوستی ناپائیدار ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوست بناتا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے بعد دوستوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ حب جاہ میں مبتلا انسان لغو باتوں میں اپنی عمر کو برباد کرتا ہے، وہ ساری عمر دوسروں کا شکار کرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ شکاری بڑا احمق ہے جو شکار کرنے کی بجائے خود ہی شکار بن جائے۔ عوام کو پھانسنا سور کا شکار کرنا ہے کہ بڑی مصیبت سے جال میں پھنسا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر تو نے شکار کھیلنا ہی ہے تو عشق کا شکار کر، لیکن یہ وہ شکار ہے جو ہر کس و ناقص کے جال میں نہیں پھنستا ہے۔ عشق کا شکار تم تب کر سکو گے اگر خود اس کے شکار ہو جاؤ گے۔ عشق کا یہ نعرہ ہے کہ شکاری بننے سے بہتر ہے کہ تم خود شکار بن جاؤ۔ عشق کے معاملے میں اپنے آپ کو بے عقل بنا لو اور سورج بننے کی بجائے ذرہ بن جاؤ، یعنی خانماں برباد بن کر میرے در پر آ پڑو۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو حقیقی لذت حاصل ہوگی اور پھر انسان غلامی میں شاہی کرے گا۔ دنیا کے کام الٹے ہیں، جو اس کے قیدی ہیں لوگ انہیں شاہ کہتے ہیں، اور جو شاہ ہیں انہیں فقیر اور گدھا کہتے ہیں۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 17۔ اس کا بیان کہ اللہ کی مہر اور قہر کو سب جانتے ہیں اور سب قہر سے گریز کرتے ہیں اور اس کی مہر سے وابستہ ہے۔ ایک درویش نے دوسرے درویش سے پوچھا کہ تو نے حضرت حق کو کیسا پایا؟ جواب میں وہ بولا، ذات حق کی چگونگی ناقابل بیان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے بائیں جانب باغ دیکھی اور دائیں جانب حوض کوثر دیکھا۔ لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو سوز آگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک اس نہر کے لیے مست ہے۔ لذائذ نفسانی آخرت میں سانپ اور بچھو کی صورت میں نمایاں ہوں گے، اسی طرح مجاہدات و عبادات کی مشقتیں نوازشات کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے یہ تدبیر فرمائی ہے کہ انسان اگر دنیا میں نفسانی فوائد میں لگے گا جو بظاہر حوض کوثر کی طرح حسین ہے، تو بباطن وہ آگ کو حاصل کر رہا ہے، اور عبادت کی مشقتوں میں لگے گا جو بظاہر آگ ہیں تو وہ آخرت میں حوض کوثر حاصل کر لے گا۔ اس پوشیدہ راز کی طرف کم لوگوں کی توجہ ہے۔ وہ سربلند ہے جو اس زندگی میں کچھ مشقت اٹھاتا ہے۔ دراصل لوگ نقد فائدے کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے آخر میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس زندگی کی عبادات کی مشقت پکارتی ہے کہ میں آگ نہیں ہوں، چشمہ نور ہوں، چنگاریوں سے نہ گھبرا۔ اگر تو اللہ کا خلیل ہے تو عقل مند بن اور مجاہدات کی آگ میں کود جا۔ پروانوں کی طرح اس آگ میں کود جانا جو پانیوں کی جان ہے۔ پروانے کا معاملہ ہمارے معاملے کے برعکس ہے، وہ نور دیکھتا ہے اور آگ میں گر جاتا ہے۔ دل آگ میں کودتا ہے، نور میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے آگ کو پانی کی شکل دے دی اور آگ میں چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو برباد کر دیا، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ ہل جائیں، یعنی جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہر چیز کے پیدا کرنے والے کے سامنے ممولے کی طرح پھنس کر رہ گئے۔ فرعون نیل کو خشکی سمجھ کر پانی میں ڈوبا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو آگ سمجھ کر گلزار میں پہنچ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے لیے عقل کا ایک ذرہ روزے اور نماز سے بہتر ہے، اس لیے کہ عقل جوہر ہے اور یہ دونوں عرص ہیں۔ عبادات عقل شرعی کی تکمیل کے لیے فرض ہوئی ہیں اور شرعی اعتبار سے عقل دل میں ہے۔ عبادات
आईना दिल की सफाई के लिए है, लेकिन अगर आईना ऐसा है जो देर से साइकिल होगा तो ए मुर्शद, आप ऐसे आईने की तरफ तवज्जो फरमाएं जो थोड़ी साइकिल से ही चमक उठे। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 18। अक्लों का फर्क असल फितरत से है। अहले अकल के नज़दीक शख्सी अक्लें बराबर हैं, फ़र्क सिर्फ तालीम, रियाजत और तजुर्बा का है। ये हकीकत है कि अक्लों में फितरी तफावुत है और इनके मुख्तलिफ मरातिब हैं। एक अक्ल का नूर सूरज जैसा है और दूसरी अक्लें सितारों जैसी कम दर्जा भी हैं। अक्ल कुल यानी वली अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की अक्ल के सामने से जब माँ सिवा अल्लाह का अब्र हट जाता है तो वो दूसरी अक्लों को खुदा को देखने वाला नूर अता कर देती है और मखलूक की अक्लें उसकी अक्ल से फैज़ याब होती हैं। अक्ल कुल बज़ाहिर इंसानी लेकिन दर हकीकत मलकी रूह होती है। इंसान सिर्फ उस अक्ल का मजहर है। इंसान कामिल जो कि मजहर अक्ल कुल है, उससे हक की जुस्तजू कर। आम इंसान की अक्ल भी अगरचे अक्ल कुल से इस्तिफादा करती है, लेकिन दुनियावी मशागल ने उसको बेमकसद बना दिया है। अक्ल कामिल ने अपने आप को इश्क हक के जाल का शिकार बनाकर सयाद का हुस्न सीख लिया है, यानी अखलाक खुदाबंदी से मुत्तसिफ हो गई है। और अक्ल नाकिस ने दूसरों को अपने जाल में फांसना चाहा और खुद जाल में फंस गई। अक्ल कामिल खादिम बनकर मखदूम बनी और अक्ल नाकिस ने खुद मखदूम बनना चाहा तो इज्जत के रास्ते से भटक गई। फिरौन ने मखदूमियत पसंद की तो दरिया में गर्क कर दिया गया। सिब्ती खादिम और कैदी बना तो आकाओं में शुमार हुआ। खादमियत से मखदूमियत हासिल होना इंसानी तदबीर से मुमकिन नहीं है, बल्कि फजल खुदाबंदी पर मौकूफ है। इंसानी मक्कारी और तदबीर फजल रब्बानी के मुनाफी है। इंसान खिदमत गुजारी की तदबीर अख्तियार करे तो अंबिया अलैहिस्सलाम के इखलाक से मुत्तसिफ हो जाएगा और उम्मती होते हुए भी उसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के औसाफ पैदा हो जाएंगे। इंसान को अपनी तदाबीर को तरक करने की तदबीर करनी चाहिए और अपने आप को औसाफ ज़मीमा से पाक करना चाहिए। कम तरीन बंदा बनने की तदबीर करेगा तो आकाई मुजस्सर आएगी। खिदमत मखदूम बनने की नीयत से बिल्कुल न की जाए। अपनी तदाबीर की जोर आजमाई न कर, आजिज़ी इख्तियार कर, क्योंकि अल्लाह पाक आजिज़ों पर रहम फरमाता है। वो आजिज़ी इख्तियार कर जो एक मजबूर प्यासे की होती है। बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम मसनूई रोना रोए थे। ऐसी गिरियाजारी की कोई अहमियत नहीं। एक किस्सा सुन ले। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 19। एक बद्दू का किस्सा जिसका कुत्ता भूख से मर रहा था और उसके पास रोटियों से भरा हुआ थैला था। एक अरब अपने कुत्ते के पास बैठा आहुजारी कर रहा था कि ऐ मेरे साथी, तेरे बगैर मैं क्या करूंगा। एक और शख्स वहां से गुजरा तो उसने रोने और आहुजारी की वजह पूछी। बद्दू बोला, ये मेरा बहुत ही अच्छा कुत्ता है, अब वो मर रहा है। ये बहुत अच्छा शिकारी था और चोरों से मेरे घर की हिफाजत करता था। बड़ा साबिर और नेक था। हाय, अब मैं क्या करूं, इसके बगैर कैसे जीऊंगा। गुजरने वाले ने पूछा कि आखिर इसे हुआ क्या है। बद्दू बोला, भूख की वजह से मर रहा है। उस शख्स ने कहा, ऐ भाई, अब सब्र कर, अल्लाह साबिरों को अच्छा बदला देता है। इसके बाद उसने पूछा कि तुम्हारी कमर के साथ क्या बंधा हुआ है। बद्दू बोला, मैंने कल के लिए काफी खाना रखा हुआ है ताकि खुराक कम होने की वजह से मेरा जिस्म कमजोर ना हो जाए। उसने कहा कि कुछ रोटी कुत्ते को भी क्यों नहीं देते। वो बोला, रोटी खत्म हो गई तो पैसों से मिलेगी, आंसू जो मैं बहा रहा हूं ये तो मुफ्त के हैं। वो शख्स बोला, ऐ हवा से भरी हुई मश्क, तेरे सर पर खाक, क्या रोटी का टुकड़ा तेरे नजदीक आंसू से बेहतर है। आंसू तो दरअसल खून होता है जो गम से पानी बन जाता है। तूने अपने आप को जलील कर दिया, इसलिए तेरा ये आंसू भी जलील है। मैं अपने मुर्शद कामिल का गुलाम हूं जो ऐसा बाहिम्मत कीमिया परस्त है कि वो आज कीमिया यानी ज़ाते बारी ताला के सामने ही करता है। जब हकीकत इज्जो शिकस्तगी के साथ दुआ की जाती है तो फजले खुदा दौड़ कर आता है। मुजाहदात की आग भड़का, तब दुनिया से निजात मिलेगी। जब इंसान अपनी तदबीर को खुदाई तदबीर में फना कर देता है तो
जब राहें खुल जाती हैं, उन राहों का अदना दर्जा यह है कि इंसान को अबदी उरूज और बका हासिल हो जाता है और उसे इल्म लुदनी हासिल हो जाता है। इंसान जब उस मकाम को खूब समझ लेता है तो उसके हुसूल के लिए पूरी कोशिश करता है, मगरूर नहीं बनता। इंसान की खुदबीनी उसके लिए सबसे ज्यादा मोहलिक है। हाँ, अगर वो सिफाते खुदाबंदी से मुत्तसिफ हो गया तो फिर उसकी खुदबीनी अपनी खुदबीनी नहीं रहती। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 20, नजरे बद के बारे में बयान। ए मोर, तू अपने परों ही को न देख, अपने पांव का बद्दापन भी देख। इंसान को अपने अयूब पर नजर रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों को नजरे बद लग जाएगी। नजरे बद की बहुत बुरी और बड़ी तासीर होती है, कुरान पाक में है, और करीब है कि काफिर लोग तुम्हें अपनी निगाहों से फिसला दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा चलते चलते फिसल गए, हालांकि ना बारिश हुई थी और ना ही कीचड़ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिसलने से बहुत ताज्जुब हुआ। फिसलने की वजह वही से मालूम हुई कि किसी काफिर की नजर बद इस कदर सख्त थी कि तुम तो सिर्फ फिसले, अगर कोई और होता तो हलाक हो जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मासूम थे, इसलिए उन पर इसका असर महज उसकी तासीर दिखाने के लिए हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से इबरत हासिल कर लो, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहाड़ पर भी उसका असर हुआ तो अपनी गास जैसी हैसियत पर उसकी तासीर को समझ लो। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस वादी के लोग अपनी नजर बद से लोगों को मुतासिर करते हैं। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 21, आयत। और करीब है कि काफिर तुम्हें अपनी नजरों से फिसला दें, जबकि उन्होंने जिक्र यानी कुरान सुना और कहते हैं कि ये मजनून है और नहीं है मगर जहानों का तज़किरा की तफसीर। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इस वादी के लोग बुलंद परवाज गिद्ध को भी अपनी नजर बद से मुतासिर कर देते हैं। उनकी निगाहों में यह असर है कि शेर की खोपड़ी को शक कर देते हैं। अगर किसी ऊंट का गोश्त इनको पसंद आ जाए तो उस पर अपनी निगाह बद डालकर फौरन गुलाम को उसका गोश्त खरीदने के लिए रवाना कर देते हैं। हसद और नजर बद के असर से आसमान की गर्दिश उल्टी हो जाती है। गो नजर बद का असर है, लेकिन असल सबब तकदीरे इलाही है जो मख्फी है। जिस तरह पानी से चलने वाली चक्की बाज़ाहिर मुतहर्रिक है, लेकिन हरकत का असल सबब पानी होता है। नजर बद की तासीर को आरिफ की नजर फना कर देती है। नजर बद की तासीर कहरे इलाही है और नेक नजर की तासीर रहमत इलाही है और रहमत कहर पर गालिब है। नबी रहमत का और काफिर कहर का मजहर है। हुब्बे जाह की बीमारी शाहवत मेदा से बहुत बड़ी हुई होती है। हुब्बे जाह में उलूहियत में शिरकत का दावा है और शिरक नाकाबिले मुआफी जुर्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश शहवत मेदा और बाह की वजह से थी और शैतान की मासियत हुब्बे जाह की वजह से थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गलती का असर ज़ाइल हो गया, लेकिन शैतान मासियत में मुब्तला रहा। खाने और शर्मगाह की शहवत में उमूमन इनकिसारी से काम लेना पड़ता है। हुब्बे जाह की मजम्मत के लिए दफ्तर दरकार है। लुगत में शैतानत, सरकशी और तकब्बुर को कहा जाता है, इसलिए ये सिफ्त लानत की मुस्तहिक है। खाने वाले एक दस्तरखान पर 10 जमा हो जाते हैं, लेकिन 2 बादशाह दुनिया में भी जमा नहीं हो सकते। हर बादशाह की ख्वाहिश होती है कि तन्हा सारी दुनिया पर हुकूमत करे। बादशाहों के तकब्बुर और हुब्बे जाह की मिसाल आग की सी है जो हर चीज को जलाकर राख कर देती है और कुछ ना मिले तो अपने आप को जलाकर खाकस्तर बना देती है। अपने आप को नाचीज बनाकर हुब्बे जाह के मर से निजात हासिल कर लो। सख्त चीज को एहरन पर कूटा जाता है, जबकि नर्म चीज महफूज रहती है। अलूहियत अल्लाह की चादर है, दूसरा ओढ़ेगा तो वबाल बन जाती है। ताज अल्लाह की मलकियत है, हमारे लिए तो खिदमत गुजारी की बेटी है।
मोर का अपने परों के हुस्न पर गुरूर करना खुदाई में शिरकत का दावा है। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 22। एक दाना का किस्सा जिसने देखा कि मोर अपने पर नोच कर फेंक रहा था। एक अक्लमंद ने एक मोर को देखा कि अपने पर उखाड़ रहा था। उस मर्द ने मोर से कहा कि तेरे पर इतने प्यारे हैं कि हर शख्स इनको कुरान में रखता है। हसीन लोग हवा के लिए तेरे परों के पंखे इस्तेमाल करते हैं, तेरा अपने परों को उखाड़ना बेबाकी है। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे परों पर नक्काशी किस जात ने की है? अगर तू जानता है तो फिर इस कारीगरी को बर्बाद क्यों कर रहा है? ऐसा नाज़े बेजा गुलाम को शाह की नजरों से गिरा देता है। इंसान को भी नाज करना बहुत पसंद है, लेकिन इसमें खतरात बहुत हैं। बेखतर रास्ता नयाजमंदी का है, लिहाजा इंसान को वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नाजो अंदाज जब बढ़ता है तो वबाले जान बन जाता है। न्याजमंदी अगरचे इंसान को मस्कीन और लागर बनाती है, लेकिन कल्ब को रोशनी अता करती है। हजरत हक की सिफ्त है कि वो मुर्दे से जिंदा पैदा कर देता है। तो याद रखो, जो मुर्दा बन जाएगा उसे वो नई जिंदगी अता फरमाएगा, चूंकि वो जिंदा से मुर्दा भी पैदा करता है। अगर तू नफ्स को ना मारेगा तो वो मुर्दा हो जाएगा। तू फानी बन जा, फिर वो तुझे हयात अबदी अनायत कर देगा। तू अपने ऊपर खिजानदारी कर देगा तो बहार का लुत्फ देखेगा। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 23। इसका बयान के अफकार से नफ्स मुतमइन्ना की सफाई और सादगी परेशान हो जाती है, जैसा कि आईना पर लिखने के बाद साफ करने से दाग रह जाता है। मुख्तलिफ किस्म के अफकार की वजह से नफ्स मुतमइन्ना की सफाई में खलल पड़ता है। जैसा कि आईना पर कुछ लिखो और फिर साफ कर दो तो फिर भी उस पर दाग रह जाता है। नफ्स मुतमइन्ना का चेहरा अफकार के नाखून से जख्मी हो जाता है। खुसूसन बुरे अफकार तो जहरीले नाखून हैं जो बाज़ औक़ात रूह तक के चेहरे को बदनुमा बना देते हैं। जब इंसान अफकार के किसी गिरा को खोलता है तो रूह के जर्री पर नापाक हो जाते हैं, जिससे उसकी परवाज में कमी आ जाती है। इन दुनियावी अफकार की उकदा कुशाई ऐसी है जैसे किसी खाली थैली के मुंह की सख्त गिरा को कोई शख्स खोले जो ला हासिल है। इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। चंद गिरों के खोलने में तू बूढ़ा हो गया। फर्ज कर ले कि चंद गिरें तूने और खोल ली, लेकिन हासिल क्या हुआ? तेरे शक्की या सईद होने की गिरा जो तेरे गले में लगी हुई है। अगर तू इसको खोल ले तो ये सबसे बेहतर होगा। अगर तू आदमी है तो इस मुश्किल को हल कर। अक्ल को इस्तेमाल करने वाले लोग अर्ज और जौहर की तारीफ में और लोगों के हालात पर गौर करने में लगे रहते हैं और अपनी हकीकत और माहियत से बेखबर रहते हैं। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। याद रखो, अपने नफ्स की हकीकत का इल्म इंसान को खुदा की मार्फत तक पहुंचाता है। नफ्स की हकीकत को मालूम करने का जरिया सवाए मुर्शिद कामिल के कोई नहीं। हाँ, अल्लाह किसी पर खुसूसी मेहरबानी फरमा दे तो उसके लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह की हकीकत को मालूम करने में दलील का कोई दखल नहीं है। दलील का कोई नतीजा बरामद ना हो तो बेकार है। तू अपने अंजाम पर गौर कर ले। तूने मुशाहिदा किया है या महज मखलूक के जरिए खालिक को समझा है? ये आलिम मसनू है और हर मसनू का कोई साने जरूर होता है। बरगजीदा अशखास हमेशा हर हाल में अपनी तवज्जो साने की तरफ रखते हैं और दलाइल से हटकर मुराकबा में मशगूल होकर मुशाहिदा तक पहुंचते हैं। फलसफी असर से मौसर को समझता है, यानी धुएं से आग तक पहुंचता है, लेकिन आरिफों के लिए कुर्ब और इश्क की आग धुएं से नजदीक तर है। इसलिए मुशाहिदा से हटकर दलाइल से उस जात तक पहुंचना सियाकारी और गलती है। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 24। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, इस्लाम में रहबानियत नहीं है का बयान। मासियत के असबाब और कुदरत के होते हुए उससे बचना कमाल है, ना कि गुनाह की ताकत को ख़त्म करके उससे बचना। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ راہب گناہوں کے اسباب اور اس کی قدرت کو فنا کر ڈالتے ہیں۔ مور کو نصیحت کی گئی ہے کہ تو اپنے پر نہ اکھاڑ، یعنی شہوت اور حب جاہ کے اسباب کو ختم نہ کر، کیونکہ یہ تیرے دشمن ہے، اور دشمن نہ ہو تو جہاد کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان میں شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے تو زنا نہ کرنے کے حکم کی فرما برداری کے اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر انسان کا کسی جانب میلان نہیں ہے تو اس سے صبر کرنے کے اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ دشمن نہ ہو تو پھر لشکر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ راہب زنا سے بچنے کے لیے اپنے خصیے نکلوا دیتے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے انفقو، یعنی خرچ کرو۔ اس حکم کی تعمیل جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ انسان کمائے۔ اگرچہ قرآن میں صرف خرچ کرو آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ کماؤ اور خرچ کرو۔ اسی طرح صبر کرو کہ حکم میں تعمیل جب ہی ہے کہ رغبت موجود ہو۔ کلو، تم کھاؤ کا حکم شہوت کا جال ہے، اور لا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو، عفت ہے۔ اب اگر کلو ممکن نہ ہو تو لا تسرفو کہ کوئی معنی نہیں ہے۔ صبر کرنے میں اگر کوئی کلفت ہی نہیں ہے تو اس کی جزا حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب شرط مفقود ہو تو مشروط موجود نہیں ہوگا۔ صبر کی تکلیف ہو تو اس کا بدلہ بھی ہوگا۔ دونوں قابل مبارکباد ہیں۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 25۔ اللہ کی جانب سے عاشق کے عمل کا ثواب باری تعالیٰ خود ہے کا بیان۔ پہلے جزا کا بیان ہو رہا تھا، لیکن اب بتاتے ہیں کہ عشق کی جزا کیا ہے۔ عاشقوں کا بدلہ خود ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے۔ عاشقوں کا رنج و خوشی اور ان کے اعمال کی اجرت صرف ذات الہی ہی ہے۔ اگر وہ معشوق کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہے تو پھر اس کا عاشق عشق نہیں ہے بلکہ وہ دیوانہ ہے۔ جب عشق الہی نمودار ہوتا ہے تو ماسوا اللہ اس کی آگ سے جل جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ میں الا اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کے لیے سب کچھ ذات خداوندی ہی ہے۔ عشق غیر کو بالکل جلا ڈالتا ہے۔ عاشق کی آنکھ صحیح ہوتی ہے، وہ صرف ایک ہی دکھاتی ہے۔ بہنگے کو ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی حسن کی جھلک ہے وہ ذات خداوندی کا پرتو ہے۔ جسم میں روح کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے اور یہی جسم کا حسن ہے۔ ہر چیز کے عکس کو عکس خداوندی وہی سمجھے گا جس کی روح انسانی زندہ ہوگی۔ جو روح انسانی کی عظمت سے ناواقف ہے وہ روح حیوانی ہی کو سب کچھ کہیں گے۔ جو فطرتاً بد ہیں ان کی اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔ جس نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا ہو وہ حجاج بن یوسف کو ہی عادل سمجھے گا، جو کہ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ اس نے ہزاروں بے قصور لوگوں کا خون بہایا تھا۔ جب تک کوئی اصل کو نہیں دیکھ لیتا وہ نقل سے دھوکہ کھا ہی جائے گا۔ جو شخص حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے وہ مجاز کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دنیا کو بھگت کر آخرت کی قدر معلوم ہوگی۔ انسان جب دنیا کی زندگی ختم کر کے عالم آخرت میں پہنچے گا تو بہت شکر گزار ہوگا۔ پھر سمجھے گا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں خاک اور مٹی تھی۔ دنیا خارستان تھی اور آخرت گلستان ہے۔ دنیا میں جس قدر وقت گزرا اس پر انسان افسوس کرے گا۔ مرنے کے بعد ہر نیک و بد جلد مر جانے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ اگر نیک ہوگا تو کہے گا کہ کاش میں جلد اس بلائی تک پہنچ جاتا۔ اگر بد ہے تو کہے گا کاش پہلے مر جاتا تو برائیاں کم کرتا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔